my dear lovely folks. I hope you all are doing well. So this is a video part series 8 of Java playlist. So today in this video, I will teach you about conditional statement in Java. So let's get started. So basically in Java, conditional statement are used to control the flow of your program based on certain condition. The most used condition statements in Java are if, else, and switch. These statements allow you to make decisions in your code based on whether certain conditions are true or false. Like if in Java conditional statement क्या रहता है? Conditional statement में हम कंडीशन पुट करते, जैसे अगर ये नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो ये होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपकी एज 18 है तो आप अडल्ट हैं, अगर आपकी एज 18 से नीचे है तो आप अडल्ट नहीं है. Likewise, okay. So let's move to the first conditional statement, which is if condition. So let's get started. So here I have created a class which is hunger level demo.java. So in this class I will make if condition. Okay, so here I am already created class. If you don't know how to create classes, how to create objects, so you can watch my previous video for better understanding. Okay, so अभी हम if statement की तरफ बढ़ते हैं. So imagine you have a box of candies and you want to eat one candy only if you are feeling hungry. You check if you are hungry, and if you are, so you eat a candy. If not, you don't eat any candy. So यहाँ पे मैं एक if condition put कर रही हूँ जिसमें आपको सोचना आपके पास कैंडी है और अगर आपको भूख 5 से ज्यादा लग रही है तो आप हंग्री है, अगर नहीं लग रही है तो यू आर नॉट हंग्री. तो अभी हम इसे प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पे मैं पहले एक डेटा टाइप डिफाइन करी विच इज इंटीजर, एंड यहाँ पे मैं हंगर लेवल डिफाइन कर रही हूँ. लेट्स से अगर आपका हंगर लेवल 5 है, ठीक है, तो ओके है, बट अगर आपका 5 से ज्यादा है सो यू आर हंगर. ओके, अगर 5 है सो यू आर नॉट. सो यहाँ पे मैं एक इंटीजर डिफाइन करी विच इज इंट हंगर लेवल इक्वल्स टू 5. ठीक है, सो अगर आपका हंगर लेवल 5 से ज्यादा है तो आपको बहुत कस की भूख लग रही है, अगर 5 से कम है सो यू आर नॉट हंगर. ओके, सो इफ यहाँ पर भी मैं कंडीशन पुट कर रही हूँ. सो इफ hunger level is greater than equal to 4, so put curly braces and then inside the curly braces you have to make statements. ठीक है, so अगर आपका hunger level, what output we got here. So here you can see time to eat a candy, because यहाँ पर हमने क्या दिया है, अगर हमारा hunger level 5 से ज्यादा है तो you are hungry. ठीक है, अगर 5 से कम है तो you are not. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 से कम, सो यहाँ पर आउटपुट में आना चाहिए you are not hungry करके. So run process. Here you can see no candy for now. ठीक है, so now move to the next condition which कहते हैं if else condition cure, which is रूम लाइटिंग डेमो. यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया है रूम लाइटिंग डेमो के नाम से. So let's say you have a light switch in your room. If it's dark, you turn the light on. If it's not dark, you keep the light off. ठीक है, so इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. So यहाँ पर मैं int and then snake choice. सो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रही हूँ, अगर रूम में अंधेरा है तो लाइट चालू करो
और अगर अंधेरा नहीं है तो नो नीड टू ऑन और स्विच ऑन द लाइट, ठीक है। सो इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले एक बूलियन ले रही हूँ विच इज बूलियन इज डार्क। अगर आपको नहीं पता ऑपरेटर क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया, बूलियन बेसिकली क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स का क्या काम करता है। सो बूलियन इफ इज डार्क इक्वल्स टू ट्रू। अगर रूम में अंधेरा है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इट्स डार्क इन द रूम, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं, इफ इज, यहाँ पे देखिए सजेशन आएगा, इफ इज डार्क, सो पुट कर्ली ब्रेसेस and make statement which is system.out.println. Inside the statement you just have to write turn on the light, simple, no need to do anything else, ठीक है। और else अगर उजाला है तो there is no need to switch on the light, so sys out। देखिए आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे लिखना है एंड देन sys out the room is bright enough। आप लोगों को अगर डार्क है तो यू टर्न ऑन लाइट, अगर नहीं है थोड़ा भी उजाला है तो देयर इज नो नीड, so you don't turn on, so the light। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हम क्या आउटपुट प्राप्त करते हैं यहाँ पर। So here you can see turn on the light because रूम में अंधेरा है, ठीक है। तो ऐसे हम अनदर एग्जांपल भी ले सकते, जैसा इवन ऑड का एग्जांपल ले लेते। फॉर एग्जांपल इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर हमारा आउटपुट रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो नंबर इज इवन, अगर नहीं आ रहा है तो नंबर इज ऑड। चाहिए तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ, विच इज if statement। So imagine your teacher giving grades to students based on their test scores, you use different rules to give A B C grades or फेल देम, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ मैं आप यहाँ पे मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आपकी मैम आपको ग्रेड प्रोवाइड करिए अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अगर मार्क्स आपका बहुत लेस है तो फेल हो, और अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप हायर हो तो आपको A O B C ऐसा मिलेगा। तो ये एग्जांपल में मैं ये बताने का ट्राई करूंगी आपको, ठीक है। सो मूव टू द ग्रेडिंग डेमो डॉट जावा। सो यहाँ पर भी मैंने क्लास ऑलरेडी क्रिएट की हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या काम करती हूँ, पहले एक इंटीजर टेस्ट स्कोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, इसमें वैल्यू असाइन करती हूँ 78, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ टेस्ट स्कोर is greater than equal to 90, so your marks will be A na, and you got A grade, so sys out and you got an A, congratulations। else if test score is greater than or equal to 80, so sys out you got B।
Here you can use multiple else if. Test score is greater than equal to 70. Sys out. You got an C. Don't be sad. Else अगर आपको इससे भी नीचे मिल रहा है सो यू आर फेल. सी से भी नीचे है तो सिस आउट. You failed the test. अगर एक भी कंडीशन यहाँ मैच नहीं कर रही है so if none of the condition match so you are fail basically. ठीक है, तब हम इसे रन करके देखते हैं. So you got an C because यहाँ पे क्या दिया है हमारा 70 से ज्यादा रहेगा तो C रहेगा एंड यहाँ पर हमने वैल्यू क्या डाला है 78 डाला है. अगर यहाँ पे मैं इन स्पेस ऑफ 78 अगर मैं यहाँ पे 90 पुट करती हूँ लेट्स से सो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ सो यहाँ पे मुझे A मिलना चाहिए बेसिकली. सो यू गॉट एन A. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. देखो इफ एल्स इफ हमारा जो भी प्रोग्राम है उसको ना बहुत ही मतलब लेस लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर देता है. अगर हम यही नॉर्मली इफ कंडीशन से करेंगे तो हम लोग को मल्टीपल यूज करना पड़ेगा ना. बट इफ एल्स इफ में हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन को एक में ही रैप करके हमें जो भी एक्सेप्टेड आउटपुट है वो हम कर सकते हैं क्योर. सो यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट की हूँ वेंडिंग मशीन डेमो. Think of a vending machine with buttons for different snakes. Depending on which button you press, you got a different snake. It's interesting, na? So let's understand with an example. So here I am taking one data type. So यहाँ पर मैं int snack choice इक्वल्स टू 2 यहाँ पे मैं पुट करती हूँ एंड यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं. तो स्ट्रिंग स्नैक नेम पुट सेमीकोलन और यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. सो स्विच के अंदर हम क्या ले रहे हैं स्नैक चॉइस ले रहे हैं कि कौन सा स्नैक हमको चाहिए. सो पुट सेमीकोलन एंड यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे हमें केस देना पड़ता है. सो केस 1 इफ स्नैक नेम इक्वल्स टू चिप्स. If snack name equals to chips, put semicolon and then break. Case 2, put semicolon. If snack name equals to candy, put semicolon and then use break. And then case 3, snack name equals to cookies. And then break.
after that default. Snack name equals to invalid choice.